Hello, hello. Good afternoon, students. Class 11th biology students. Good afternoon to all. I am Monica Malhotra, PGT Biology from KV Push Bihar, New Delhi, and I am going to hold a session for class 11th biology students, the fifth session on 4th of May 2020. This chapter is chapter 4 of your syllabus, Animal Kingdom. Today is the part 5 we are going to deal of this chapter. Yesterday, I taught you on Saturday. I taught you about the phylum Annelida. So we studied about Askelmans and Annelids. Today we are going to go ahead to the next phylum, but before that, we need to do a short recap by discussing some questions out of the last session. So here is a quick recap session. These are very simple fill in the blanks for you people. Yes, students, I can still see not much of you have joined the session yet. Hurry up, join the session fast. Class 11th biology students. Yes, join the session. We are going to start very soon, and right now I'm holding a recap session for you people. Question number 1. Question number 1 says the mode of respiration in earthworm is. Yes? Answer the question. The mode of respiration in earthworm. So I'm talking of phylum Annelida. The mode of respiration in earthworm is. Yes, I'm waiting for the answers. Yes, the answer is cutaneous respiration. So first question is the mode of respiration in earthworm is. So the answer is cutaneous. Cutaneous respiration means the respiration which occurs through skin. So that is cutaneous respiration. So next question is now the excretory unit of annelids is. The excretory unit of annelids is. Yes, try to answer. The excretory unit of annelids is. Yes, I'm waiting for the answers. Yes, the correct answer is. The correct answer is nephridia. Yes, you are right. This is nephridia. Skin. Okay, you have answered for the first question as skin, but better it should be cutaneous. This is the correct term. Yes, Sujit has said nephridia. Yes, Manju. Yes, you are correct. Raghunath Singh, nephridia. Yes, Madhu has given the correct answer, nephridia. Yes. So you students are correct in answering. The correct answer is nephridia. Yes, Gurveer, it is nephridia. Now we move on to the third question. The fertilization in earthworm is dash type. So you have to choose between external and internal. Yes, Santosh, you are also correct. Udal, सही है. अब आप third question पे आ जाओ बेटा. Yes, Sujit is the first one to answer correctly. It is the external fertilization. Very good. So the fertilization in earthworm is of external type. नहीं बेटा, external fertilization होता है. It occurs in ootheca. External medium में होता है ये. No, it is not internal, Madhu. It is external, right? चलिए, fertilization in earthworm is external type. Now we come to, yes, nephridia answer is correct. Yes, Shahid, Gudu, you all are correct. Yes. No, ये क्यों कंफ्यूजन हो रहा है बेटा आपको? अर्थवर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, बॉडी से बाहर होता है फर्टिलाइजेशन. इट इज एक्सटर्नल. एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, गलत बोल रहे हो आप लोग. ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इन अर्थवर्म इज एक्सटर्नल टाइप. चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं. मैंने आपको बताया था इसमें क्लाइटेलम
क्लाइटेलर सेगमेंट होते हैं 14, 15 और 16 सेगमेंट। वो एडल्ट वर्म में दे टर्न इनटू ग्लैंड, क्लाइटेलर ग्लैंड बनाते हैं वो। दिस क्लाइटेलर ग्लैंड इट सिक्रीट अ सिक्रीशन, वो सिक्रीशन एक ड्रम लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, बॉडी से अर्थवर्म की निकल जाता है बाहर, ठीक है। अर्थवर्म अपनी बॉडी को कंट्रैक्ट करता है और वो ड्रम लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ जाता है, उसे ऊथिका कहते हैं। उसी ऊथिका में मेल और फीमेल गैमीट्स फर्टिलाइज होते हैं। तो फर्टिलाइजेशन जो अर्थवर्म में है वो एक्सटर्नल टाइप है। यस, अब आप सही बोल रहे हो, ठीक है। संतोष, विजय, राजकुमार, समझ में आ गया आपको एक्सटर्नल कैसे है? इट अकर्स इन अ drum like structure produced by clitellum, okay, and that is because it is not inside the body of earthworm, it is external, okay, बिल्कुल सही। चलिए अब फोर्थ क्वेश्चन पे आ जाते हैं। members of phylum Ascomynes, they have which type of coelom? pseudocoelom और coelom? Yes, many of the students have already answered. सुजीत ने सबसे पहले आंसर दिया pseudocoelom, फिर मंजू ने आंसर दिया मधु, वीना बिल्कुल सही आंसर है आपका बेटा, अनु, अक्षत, yes, very good. So this is pseudocoelom. Vijay Yadav, pseudocoelom is the correct answer. Sajuddin Khan, yes, pseudocoelom, that is the correct answer. Now we move on to the fifth question. Yes, Madhu, Mahaset, बिल्कुल सही। अब आप फिफ्थ क्वेश्चन पे आइए। The body segmentation in annelids is called, क्या बोलते हैं इसको? बॉडी सेगमेंटेशन जो एनालिड्स में होती है उसको क्या बोलते हैं? Yes, yes, Shreya, pseudocoelom is correct. Now you come to the last fifth question. The body segmentation in annelids is called. Yes, Ritika, correct. Move on to fifth question now. No. बॉडी सेगमेंटेशन को क्या बोलते हैं बेटा? पूरी बॉडी एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंटेड है अर्थवर्म की, स्पेशल टाइप का सेगमेंटेशन है, ट्रू सेगमेंटेशन। यस, here is the correct answer. Veena Rai has given the correct answer. Metamerically segmented. Very good. सुजीत ने भी सही आंसर दिया। मधु मनोज बिल्कुल करेक्ट है। गुरवीर वेरी गुड। शाहिद रजा इज करेक्ट। So metamerism is the correct answer. Yes, very nice students. Yes, Shreya, metamerism. Okay. Sanika, metameres are the individual segments. Phenomena is metamerism. Santosh is correct. Madhu, Mahaset is correct. Yasbir, सही बोल रहे हो। रघुनाथ सही है। अभिषेक चौहान बिल्कुल सही। Metamere is the individual segment. Okay. Udal, yes, Sony, all are correct. Spellings देख लो बेटा। metamerism, METAMERISM, ये सही है, ठीक है। वेरी गुड। चलिए अब आप क्वेश्चन, अक्षत बिल्कुल सही, आदित्य, उदित, विजय, Abhishek Chauhan, Sajuddin Khan, all are correct. Now we move on to the today's session. A very interesting session I have brought for you. We are going to study now about two phylums in sequence. First, we will deal with phylum Arthropoda, and then we will deal with phylum Mollusca. First of all, Arthropoda. आर्थ्रोपोडा नाम ही इसका बहुत टेक्निकली रखा गया है। अभी इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताऊंगी आपको। पहले हम इसके मेंबर्स के बारे में देख लें ताकि आपको पता चले आप किन के बारे में पढ़ने जा रहे हैं आज। यस, राजू चौहान, रितिका, कविता, नवनीत, सुमन बिल्कुल सही बेटा, आप लोगों ने सही आंसर दिए। लेकिन अभी आप आज के सेशन पे आ जाओ, ठीक है। अब यस, नाउ आर्थ्रोपोडा के मेंबर्स कौन कौन है? फर्स्ट मेंबर आई हैव शोन इज Palemon. Okay, Palemon is this is the scientific name which is given in italics, और आगे उनका एक कॉमन नेम है जो मैंने ब्रैकेट में दिया है, राइट। Palemon, Palemon means prawn, ठीक है। कॉमनली इनको श्रिम्प्स भी कहते हैं, राइट। कॉन्टिनेंटल फूड होता है ये, इसको पका के खाते हैं। तो प्रॉन या पैलेमॉन इसका साइंटिफिक नेम है, राइट। सेकेंड मेंबर इज पेरिप्लेनेटा, इसको तो सब जानते होंगे। पेरिप्लेनेटा ये वही है जो आप सबके घरों में कहीं ना कहीं मिल जाएगा, इट इज कॉकरोच, पेरिप्लेनेटा। ओके। थर्ड इज पैलेमनियस, पैलेमनियस इसके बारे में भी सब जानते होंगे, इट इज स्कॉर्पियन, राइट। देन इट इज बटरफ्लाई, बटरफ्लाई का साइंटिफिक नेम जो है ये रोपेलोसेरा है, लेकिन ये यहाँ पर गिवन नहीं है, इट इज बटरफ्लाई, राइट। देन स्कोलोपेंड्रा, स्कोलोपेंड्रा इज सेंटीपीड, ठीक है, सेंटीपीड है। नेक्स्ट इज मस्का, मस्का ये भी आप सबको मालूम है, आपके घरों में आपने देखी है, हाउस फ्लाई, ठीक है। तो मस्का इज हाउस फ्लाई। देन एरेनिया, एरेनिया इज स्पाइडर, राइट। चलिए इन ये सब इंपॉर्टेंट मेंबर्स है फाइलम आर्थ्रोपोडा के। और भी बहुत मेंबर्स हैं बट दीज आर द मेजर वंस जिसके बेस पर हम फाइलम के कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करेंगे, राइट। चलिए
अब इसके बाद हम चलते हैं इनकी डिटेल पे, इनके सेलिएंट फीचर्स पे। चलिए, नेक्स्ट इज द सेलिएंट फीचर्स ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो यहाँ मैंने एक आर्थ्रोपोड दिखाया है आपको, राइट। अभी आर्थ्रोपोड की बॉडी आप देख रहे हो बाहर से कैसी शाइनी सी दिख रही है, और ये सब आपको दिख रहा है, सेगमेंटेशन हो रखी है इसमें, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ खास बातें जो आपको एग्जाम में जरूर पूछी जाएंगी। यू नो, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया का सबसे बड़ा फाइलम, सबसे ज्यादा मेंबर्स वाला अगर कोई फाइलम है तो फाइलम आर्थ्रोपोडा है। इसमें इतनी बायोडाइवर्सिटी, इतने इसमें वैरायटी है स्पीशीज की, ठीक है। इसमें इंसेक्ट्स भी आते हैं, और आपको पता है इंसेक्ट्स ही कितने डाइवर्स हैं, कितने प्रकार के इंसेक्ट होते हैं। और इंसेक्ट्स के अलावा भी बहुत मेंबर हैं किंगडम, सॉरी, फाइलम आर्थ्रोपोडा में। नाउ, over 2/3 of all the named species on earth are arthropods. See what an important fact. देखो, जितनी भी अर्थ पे स्पीशीज हैं उसकी 2/3 स्पीशीज जो है धरती पे वो सब आर्थ्रोपोड्स ही हैं, ठीक है। शायद आप फिर से मेरे से पहले पढ़ाना शुरू हो गए, अब धीरे धीरे चलो। आपके कमेंट्स को देख के सब बच्चे डिस्ट्रैक्ट होते हैं। जो मैं पढ़ा रही हूँ उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो पूछो, राइट। चलिए, नाउ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। हम जैसे हमने पैरामीटर सबसे पहले सेशन में देखे थे, जिनके बेस पे हम क्लासिफिकेशन को स्टडी करते हैं, तो हम ये सारे पैरामीटर्स को एक एक करके बात करेंगे इनकी, ठीक है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? ऑर्गन सिस्टम बन चुका है। कब बन गया था ऑर्गन सिस्टम, याद है किसी को? कौन से फाइलम में ऑर्गन सिस्टम लेवल आ चुका था सबसे पहले? यस, एस्केलमेंट्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थ्स तक ऑर्गन ही बने थे, एस्केलमेंट्स यानी कि राउंड वर्म में ऑर्गन सिस्टम बन गया, और अब बना ही रहेगा। कॉर्डेटा तक ऑर्गन सिस्टम लेवल ही रहेगा ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सिमेट्री, सिमेट्री देखो, इसको एक आप सेंट्रल एक्सिस से अगर कट करो इसकी बॉडी को, आपको दो इक्वल हाफ्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे सिमेट्री कैसी है इसकी? बायलेटरल सिमेट्री है, राइट। जर्म लेयर्स, जर्म लेयर्स कब ट्रिप्टोब्लास्टिक हो गई थी? कौन सा पहला फाइलम था जो ट्रिप्टोब्लास्टिक था? प्लैटीहेल्मिन्थ्स, ठीक है। No need to be sorry, Shahid, but it's good that you know everything and you are so enthusiastic to share it, but then others get distracted when you share the information which I'm going to go give ahead, so please go slow, okay। चलिए, अब देखिए यहाँ पर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल है, सिमेट्री बायलेटरल सिमेट्री है, जर्म लेयर्स ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई, ठीक है। कब से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई? प्लैटीहेल्मिन्थ से, फ्लैट वर्म से ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गई, और अब आगे कॉर्डेटा तक ट्रिप्लोब्लास्टिक ही रहेंगी। तो इस फीचर में कोई चेंज नहीं आने वाली है आगे तक, ठीक है। सेगमेंटेशन, बॉडी आपको दिख रही है, सेगमेंटेड है ना। सो देयर आर वेल डिफाइंड सेगमेंट्स ऑफ द बॉडी इन द फाइलम आर्थ्रोपोडा, राइट। एक्सोस्केलेटन, अच्छा सिलोम की पहले बात करें। सिलोम बॉडी कैविटी है, और आपको पता है कि कब से ट्रू सिलोम आया? फाइलम एनालिडा से सिलोम ट्रू हो गया, ठीक है। यू सिलोमेट जिन्हें हम बोलते हैं, ट्रू सिलोमेट एनिमल्स आ गए, और अब आगे सब में सिलोम रहेगा। जितने भी आगे कॉर्डेट्स तक हम एनिमल्स पढ़ेंगे सब सिलोमेट होंगे, तो इसमें कोई चेंज नहीं आने वाली है इस फीचर में। तो अगेन ट्रू सिलोम इज देयर इन आर्थ्रोपोडा, सो दीज आर सिलोमेट एनिमल्स, ओके। एक्सोस्केलेटन की बात करते हैं। ओके, आप सभी ने कभी ना कभी कॉकरोच को तो मारा होगा, कॉकरोच मारा है कभी? तो आपने सुना है कैसी आवाज आती है जब कॉकरोच को हम मारते हैं? क्रच की आवाज आती है, कुछ बहुत ही तीखा सा टूटने की आवाज आती है, ठीक है। वो क्या टूटता है? वो उसका एक्सोस्केलेटन टूटता है, ठीक है। वो एक्सोस्केलेटन किस चीज का बना होता है? कुछ ऐसा क्रंची सा होता होगा मटेरियल जिसके टूटने से इतनी जोर से आवाज आती है जो हमें सुनती है, ठीक है। बड़ी इरिटेटिंग सी वो नॉइज होती है। सो दैट इज मेनली काइटिन, okay। The body of arthropods, it has got exoskeleton, it is exoskeleton मतलब ऐसा skeleton जो बॉडी के अंदर नहीं है, बाहर है। एक्सो मतलब बाहर, बॉडी को बाहर से कवर कर रहा है skeleton, ठीक है। सो आर्थ्रोपोड्स की बॉडी को बाहर से कवर करने वाला skeleton काइटिन का बना होता है, इट इज मेड अप ऑफ काइटिन। तो वो जब आप उसको मारते हो तो उसकी काइटिन की प्लेट्स टूट जाती हैं। जो इनकी एक्सोस्केलेटन की ये प्लेट्स हैं काइटिन की बनी हुई, हर सेगमेंट को ढक रही हैं, जो वो टूट जाती हैं, जिसकी वजह से आर्थ्रोपोड के अंदर की सॉफ्ट बॉडी जो है वो क्रश हो जाती है, राइट, एंड इट डाइज। चलिए, सो अब इसके बाद हम बात करते हैं आगे बॉडी के पार्ट्स की। अगर हम एक कॉकरोच को मेन टाइप स्टडी का एग्जाम्पल मान लें आर्थ्रोपोडा का, ठीक है, तो हम देखें वैसे तो इनमें अलग अलग हिसाब किताब होता है। जैसे अगर हम कॉकरोच की बात करें तो उसकी बॉडी को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन।
ठीक है। लेकिन अगर हम प्रॉन की बात करेंगे तो इसकी बॉडी को दो ही भागों में बांटेंगे, सेफेलोथोरैक्स और एब्डोमेन। तो मैं आपको इसका बता दूं क्या स्टोरी है। ये जो हेड और थोरैक्स है, कई बार इनके ऊपर एक कॉमन स्केलेटन चढ़ जाता है। ये सिंगल एक ही पार्ट बन जाता है, ठीक है। और जब ये एक पार्ट होता है तो हम इसे बोलते हैं सेफेलोथोरैक्स। सेफेलो मतलब हेड, सेफेलो किसके लिए टर्म है, हेड। और थोरैक्स ये चेस्ट, ठीक है, हेड के पीछे वाला भाग, ठीक है। अगर हेड और थोरैक्स आपस में फ्यूज्ड हो तो उसको हम हेड और थोरैक्स टर्म ना देकर नाम देते हैं सेफेलोथोरैक्स, जैसे कि प्रॉन में होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पे तो हेड अलग है, थोरैक्स अलग है और एब्डोमेन अलग है। तो कॉकरोच के बॉडी को हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। सबसे आगे ट्रायंगुलर हेड है, ठीक है, पीछे ये थोरैक्स का पार्ट है मिडल में, और सबसे पीछे एब्डोमेन का पार्ट है, ठीक है। तो बॉडी ऑफ द कॉकरोच और इंसेक्ट्स जनरली इट कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है। देन अब इनका नाम आर्थ्रोपोडा कैसे पड़ा। आर्थ्रोपोडा का आप संधि विच्छेद करो, इसका स्प्लिट अप करो, क्या बनेगा, आर्थ्रो प्लस पोडा। पोडा मतलब पैर, आर्थ्रोस मतलब जॉइंट, ठीक है, ये जुड़े हुए हैं। तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। आर्थ्रोस मींस जॉइंट, पोडा मतलब अपेंडेजेस। इनमें जॉइंटेड पेयर है अपेंडेजेस के, देख सकते हैं आप। सबसे पहला पेयर ये है लेग्स का, फर्स्ट पेयर। पीछे ये सेकंड पेयर आ गया लेग्स का, उसके पीछे थर्ड पेयर आ गया लेग्स का। तो ये दोनों लेग्स, अगर आप इसको, ये इसकी डोर्सल साइड है जो ऊपर दिखाई दे रही है, कॉकरोच जब चल रहा होता है ऊपर का साइड इसका डोर्सल है, और जो ये जमीन को टच कर रहा है भाग इसका, वो वेंट्रल है, ठीक है। अगर आप वेंट्रल साइड पे कॉकरोच को देखोगे तो इसका हर एक पेयर जो लेग्स का है वो बीच में से फ्यूज्ड है, ठीक है, वो पेयर सेंटर से जुड़ा हुआ है। इसलिए हम कहते हैं दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। अपेंडेजेस क्या होती है, कोई भी पार्ट बॉडी का जिसको बॉडी के सेंट्रल लाइन ऑफ एक्सिस से हम बाहर की तरफ लेकर जा सकते हैं और बाहर से मोड़ के वापस सेंट्रल लाइन ऑफ एक्सिस की तरफ ला सकते हैं, उसको हम अपेंडेज कहते हैं। जैसे आपकी बॉडी में कितनी अपेंडेजेस हैं, दो पेयर है, एक पेयर आर्म्स का है और एक पेयर लेग्स का है ना। आप आर्म्स को भी अपनी बॉडी के सेंट्रल लाइन ऑफ एक्सेस से बाहर की तरफ घुमा सकते हो और वापस ला सकते हो, और लेग्स को भी ऐसे ही कर सकते हो, तो ये आपके अपेंडेजेस है, ठीक है। तो इसी तरह से कॉकरोच में थ्री पेयर है अपेंडेजेस के, थ्री पेयर है लेग्स के इसके, ठीक है। और ये तीनों क्या है, तीनों पेयर्स जॉइंटेड अपेंडेजेस है, राइट। इसीलिए इनका नामकरण हो गया आर्थ्रोपोडा, नाम पड़ गया इसका आर्थ्रोपोडा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जनरली एग्जाम में आता है, व्हाई आर्थ्रोपोडा फाइलम इज नेम्ड सो, ठीक है, ऑन विच कैरेक्टरिस्टिक आर्थ्रोपोडा इज नेम्ड सो। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो बॉडी के तीन भाग हो गए, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, और तीन पेयर जॉइंटेड लेग्स के हो गए। और आपको मैं बता दूं, अगर आप किसी इंसेक्ट को पहचानना चाहते हो कि वो इंसेक्ट है या नहीं, तो एक ही तरीका है पहचानने का कि ये ऑर्गेनिज्म एक इंसेक्ट है। इंसेक्ट में, हर इंसेक्ट में आपको तीन पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस के या थ्री पेयर ऑफ लेग्स विल बी देयर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंसेक्टा, क्लास इंसेक्टा ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट ट्रेड पे चलते हैं, फाइलम आर्थ्रोपोडा का डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम इज देयर, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल इज देयर। क्या होता है कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल, जो माउथ से शुरू होता है और एनस पे जाकर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ इसका आपने 10th में भी पढ़ा था, क्लास 10th में पढ़ के आए हो। यहाँ माउथ है ना, माउथ के बाद आगे इसका छोटा सा ये, माउथ के बाद पहले आ गया फैरिंक्स, ठीक है, जिसमें से खाना अंदर भेजता है ये। फिर ईसोफेगस आ गई, खाने को आगे लेके जाती है ट्यूब। Esophagus leads to a big sac-like structure. It is called crop. ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले क्रॉप के बारे में बताया था, उसमें बताया था अर्थवर्म में, बिल्कुल वैसे ही क्रॉप यहाँ पे भी है। इसका काम भी क्या है, ये फूड का रिजर्वायर है। खाना फटाफट से ये अपने माउथ से फेरिंग्स में भेजता है, वहां से इसोफेगस क्रॉप में जाके स्टोर हो जाता है। फिर स्टोर होने के बाद धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट्स में वो खाना थोड़े थोड़े भाग में गिजर्ड की तरफ जाता है, ठीक है। गिजर्ड का तो आपको पता ही है कि ये बहुत ही मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है। ये चर्निंग करता है फूड की पेस्ट बनाता है, उसको ग्राइंड करता है ना। तो जैसे जैसे क्रॉप से गिजर्ड में खाना जाता है वो चर्न होता है, ग्राइंडिंग होती है उसकी, वो पेस्ट में बदल जाता है ताकि एंजाइम्स उस पर एक्शन कर सके, ठीक है। और फिर वो जो खाने की पेस्ट है वो मिड गट में मिजेंटेरॉन में चली जाती है। ये मिड गट है कॉकरोच की। यहाँ गिजर्ड तक तो पहुंच गया, गिजर्ड माउथ से गिजर्ड तक फोरगट है, गिजर्ड के बाद ये पूरी मिडगट है, और उसके बाद ये पीछे जितनी दिख रही है एनस तक वो हाइंड गट है,
फोरगट और मिडगट के बीच में आपको ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, ये 4 पेयर्स होते हैं हेपेटिक सीका। और ये मिडगट और हाइंडगट के बीच में आपको ये बहुत सारे अबंडेंट, देयर आर एनॉर्मस, बहुत सारा नंबर होता है इनका। ये छोटी छोटी ट्यूब्स दिख रही हैं, इनके बंडल को बोलते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। मालपीजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं इनको, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको, खाना यहाँ से गिजर्ड में जाएगा, गिजर्ड में उसका चर्निंग होगा, ग्राइंडिंग, और फिर डाइजेशन शुरू हो गया। थोड़ा सा गिजर्ड में शुरू हो जाता है डाइजेशन, हेपेटिक सीका एंजाइम रिलीज करते हैं डाइजेशन के लिए, कुछ एंजाइम गिजर्ड में डाइजेस्ट कर देते हैं फूड को, बाकी मिडगट में। मेनली डाइजेशन मिडगट में हो जाता है, और उसके बाद अनडाइजेस्टेड फूड आगे कोलन, रेक्टम और एनस से बाहर निकल जाता है, ठीक है। सबसे बाद मिडगट क्या आती है, इलियम, इलियम के बाद कोलन, कोलन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद एनस। अनडाइजेस्टेड फूड इज पास थ्रू रेक्टम, थ्रू द एनस, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा एलिमेंट्री ट्रैक्ट कंप्लीट है। एंजाइम्स इसमें सारे हैं, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट के लिए कार्बोहाइड्रेट्स, एंड लिपिड्स के लिए लाइपेज, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके अंदर है। तो कॉकरोच आपसे कहीं कम नहीं है डाइजेशन में, ठीक है, सब कुछ खा जाता है ये इट्स ओमनिवोर, ठीक है। ये वो भी खा लेता है, ये जो आलू प्याज भी खा लेता है, और इंसेक्ट्स को भी खा लेता है। तो इसका मतलब कॉकरोच जो है, इसको खाने की कोई कमी नहीं है, ठीक है। डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे भी फीड कर लेता है। तो इस तरह से ये इट इज ओमनिवोर्स, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट ट्रेट पर, रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में बहुत वेराइटी है। अगर हम फाइलम आर्थ्रोपोडा की बात करें, तो रेस्पिरेशन में जो ऑर्गन्स काम में आते हैं, ब्रीदिंग के लिए जो ऑर्गन्स काम में आते हैं, उसमें बहुत वेराइटी है। मैं आपको थोड़े से इंपॉर्टेंट एनिमल्स और उनके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में बताऊंगी, ठीक है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन वो होता है जो गैशियस एक्सचेंज में मदद करता है, ठीक है, इट हेल्प्स इन गैशियस एक्सचेंज। तो अब यहाँ देखिए आप, सबसे पहले अगर हम पेलिमॉन की बात करें, प्रॉन की, ठीक है। तो प्रॉन में गैशियस एक्सचेंज के लिए कौन सा ऑर्गन है, आपको पता होना चाहिए कि गैशियस एक्सचेंज के लिए जो ऑर्गन है किस चीज पे डिपेंड करता है, हैबिटेट पे डिपेंड करता है, वो एनिमल कहाँ रहता है। प्रॉन जो है एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, ये पानी में पाए जाते हैं पेलिमॉन, है ना, झींगा मछली कहते हैं इसको कॉमनली। सो इट इज अ एक्वाटिक एनिमल, राइट, मछली नहीं है, ऐसे ही कॉमन नेम दे दिया गया है इसको। सो इट इज एक्वाटिक, क्योंकि एक्वाटिक है इसलिए पानी से इसको गैशियस एक्सचेंज करना है। तो इसीलिए गिल्स होते हैं इसके अंदर, जैसे फिश में गिल्स होते हैं, इसमें भी गिल्स होते हैं, पर बहुत ही प्रिमिटिव टाइप के गिल्स होते हैं, ठीक है। और अगर हम लिमुलस की बात करें, किंग क्रैब, तो उसमें बुक गिल्स होते हैं, ये नाम है इसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन का। स्पाइडर्स और स्कॉर्पियंस की बात करें तो उनमें बुक लंग्स होते हैं, इनके बारे में अभी बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। ये गिल्स तो आपको पता है जैसे फिश में होते हैं वैसे ही होते हैं, ठीक है, ऑलमोस्ट इनका बेसिक स्ट्रक्चर वही है। बुक गिल्स और बुक लंग्स के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में एक्सप्लेन करूंगी, ये थोड़े से टिपिकल हैं। हम मेनली आर्थ्रोपोडा फाइलम में टाइप स्टडी का एग्जांपल कौन सा पढ़ रहे हैं, कॉकरोच, साइंटिफिक नेम फेरेटिमा, है ना। फेरेटिमा के बारे में अगर डिटेल में बात करें, तो उसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है रेस्पिरेशन के लिए, ब्रीदिंग के लिए क्या है, ट्रेकियल सिस्टम। और ट्रेकियल सिस्टम में क्या है, ये दिखाया हुआ है, दिस इज अ ग्रास हॉपर व्हिच हैज बीन शोन, है ना। ग्रास हॉपर में आपको देखो दिखाया हुआ है कि इसकी जो बॉडी है, उसमें ये छोटे छोटे लेटरल साइड पे छेद होते हैं, ठीक है, हर एक सेगमेंट में छेद होता है। एक पेयर है छेद का, एक लेफ्ट साइड पे है, एक राइट साइड पे है। यहाँ आपको लेफ्ट साइड के छेद दिख रहे हैं, क्या बोलते हैं इन छेदों को, स्पाइरिकल्स। स्पाइरिकल में से हवा अंदर जाती है, ठीक है, स्पाइरिकल से हवा अंदर गई और उसके बाद ये लंबी लंबी ट्यूब्स में चली गई, फिर अंदर इनके एयर सैक्स होते हैं, इनके अंदर हवा भर जाती है, ठीक है, ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू एयर सैक्स में भर जाती है। तो दिस इज हाउ दे एक्सचेंज द गैसेस, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इसको डिटेल में आपको दिखाऊं, अगर एक स्पाइरिकल और उसके अंदर के पूरे कनेक्शन की हम नेटवर्क की बात करें, तो ये डायग्राम सामने आता है, देखो, ये इसका स्पाइरिकल है, स्पाइरिकल से हवा अंदर गई, ये आगे स्पाइरिकल के बाद एक छोटी सी ट्यूब है ना, ये ट्यूब है लंबी सी, क्या नाम है इसका, ट्रेकिया। स्पाइरिकल से हवा एंटर हुई, ट्रेकिया में पहुंची, ट्रेकिया आगे स्प्लिट होके बहुत छोटी छोटी ट्यूब्स में बढ़ जाती है, क्या बोलते हैं उनको, ट्रेकियोल्स, ठीक है। ये ट्रेकियोल्स जो है, ये बॉडी टिश्यूज के अंदर धस जाते हैं, ठीक है। एक्चुअली ट्रेकियोल्स के बाद एल्वियोलाई भी आते हैं इसमें, और वो जाकर जो बॉडी के टिश्यूज है उनके अंदर एयर को सप्लाई करते हैं, ठीक है। तो जब ये बॉडी टिश्यूज के अंदर जाते हैं, तो बॉडी टिश्यू का फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड
इन ट्यूब्स के अंदर भर जाता है, चढ़ जाता है। और आपको पता है गैसेस का एक्सचेंज हमेशा खाली नहीं होता है, ये हमेशा एक मीडियम में होता है। इसका मीडियम क्या है? वाटर। ठीक है, तो कोई एक्वस मीडियम होना चाहिए गैसेस के एक्सचेंज के लिए। वो एक्वस मीडियम इन ट्यूब्स में क्या है? टिश्यू फ्लूइड्स, because these tubes are directly dipped into tissue. So tissue fluid rises in these capillary like tubes, and through the tissue fluid oxygen is given to the body of the insect, and carbon dioxide is, it travels in the opposite direction. Finally carbon dioxide travels to the trachea and it is given out through spiracles. तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। ये ट्रेकियल सिस्टम है। डोंट वरी, ये सारे सिस्टम्स आप डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर 7 में, वहां कॉकरोच की डिटेल है, इसलिए मैं यहाँ बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ, वहां इससे ज्यादा डिटेल आपको मिलेगी। ठीक है, फाइलम आर्थ्रोपोडा में अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स हम दो और एनिमल्स के बारे में बात कर ले। लिमुलस, किंग क्रैब इसका कॉमन नेम है। दूसरा स्पाइडर और स्कॉर्पियन, ये दोनों मेंबर्स। लिमुलस के अंदर पाए जाते हैं बुक गिल्स, ये देख रहे हैं आप, ये बुक गिल्स। ये गिल्स के जो लैमिली हैं, गिल लैमिली कितने पास पास है, कितने सारे गिल लैमिली हैं, इनकी वॉल्स कितनी सारी हैं। और क्योंकि इतनी सारी हैं, ये ऐसी अपीयरेंस दिखाती है जैसे आपको नहीं लग रहा है यहाँ कोई किताब पड़ी हुई है, as if a book is lying here. ठीक है, and these all are the pages of the book. ठीक है, so these gills they have multiple lamellae, बहुत सारी वॉल्स होती है, पार्टीशंस होते हैं इन गिल्स के अंदर, और इन सब पार्टीशंस में ब्लड की सप्लाई है जो गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करती है। So because these gills have so many lamellae like the pages of the books, that is why they are called book gills. इनको बुक गिल्स कहते हैं। राजकुमार मैं बता रही हूँ बुक गिल्स क्या होते हैं, आप समझ आ गया आपको? बुक गिल्स जैसे बुक के पेजेस होते हैं बहुत सारे, गिल्स के अंदर उतने ही लेमिली, उनकी वॉल्स होती हैं, पार्टीशनल वॉल्स होती हैं बुक के पेजेस जितनी ज्यादा। ठीक है, और जो भी वॉल है उसमें ब्लड की सप्लाई होती है। ठीक है, और ब्लड की सप्लाई जहां भी होगी वहां गैसेस का एक्सचेंज होगा। ठीक है, पानी से जो ऑक्सीजन आ रही है वो ब्लड में चली जाएगी और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी, गिल से बाहर निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तरीका है बुक गिल से किस तरह से ये ब्रीदिंग करते हैं। ठीक है, लिमुलस, किंग क्रैब में बुक गिल्स होते हैं, याद रखना। ये देखिए, ये स्पाइडर या स्कॉर्पियन है, देख रहे हैं आप, स्पाइडर दिखाई हुई है यहाँ, है ना। इसमें यहाँ पर इस लोकेशन पे इसके क्या पाए जाते हैं? बुक लंग्स पाए जाते हैं। बेसिकली आप ये समझ लो कि बुक गिल्स उनमें होते हैं जो एक्वाटिक होते हैं एनिमल्स, क्योंकि गिल्स एक्वाटिक एनिमल्स में ही होते हैं, और लिमुलस भी एक्वाटिक है। स्पाइडर और स्कॉर्पियन टेरेस्ट्रियल होते हैं, तो उनमें लंग्स पाए जाएंगे। लेकिन लंग्स की कौन सी? लंग्स तो बहुत एडवांस्ड ऑर्गन हो गए ना, इनमें लंग्स थोड़ी है। इनमें बुक लंग्स, एक टर्म दी है बुक लंग्स। क्या मतलब है बुक लंग्स का? देखिए, ये चैम्बर है लंग का जिसे बोलते हैं एट्रियम। ठीक है, और इसमें देखो छोटे छोटे छेद है, ये है ना, ये आउटर एनवायरमेंट को, यही छेद है देखो, ये आउटसाइड ओपनिंग है, ये बाहर एनवायरमेंट से कॉरेस्पॉन्ड करती है, हवा यहाँ से अंदर आती है। क्या बोलते हैं इस छेद को? कॉकरोच में भी थे, स्पाइरेकल। बिल्कुल सही। तो यहाँ देखिए ये एक स्पाइरेकल दिखाया हुआ है, इस स्पाइरेकल से हवा अंदर गई, ये देखो हवा की डायरेक्शन, और ये पूरा चैम्बर जो है इसका लंग का, ये छोटे छोटे लैमिली से भरा हुआ है। ये चैम्बर में पार्टीशन हो रखा है, इतने सारे सेप्टा, इतने सारे लैमिली इस पूरे चैम्बर को सेपरेट कर रहे हैं, उसको बांट रहे हैं अलग अलग लैमिली में। ठीक है, अब क्या होगा यहाँ पर? लैमिली में ब्लड की सप्लाई है, देखो ब्लड फ्लो बिटवीन द लैमिली, ये लैमिली में ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, ब्लड आपको पता है इट इज द मीडियम फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। यहां से ऑक्सीजन अंदर गई और ये लैमिली के अंदर के ब्लड में ऑक्सीजन एंटर हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जो इस ब्लड लैमिली के ब्लड में ज्यादा थी वो स्पाइरेकल से बाहर हो गई। तो इस तरह ऑक्सीजन अंदर जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती है। क्योंकि ये लंग्स में बहुत सारे लैमिली हैं, ऐसा लगता है जैसे एक किताब के बहुत सारे पन्ने हैं, दैट इज व्हाई दीज लंग्स आर कॉल्ड बुक लंग्स। कॉन्सेप्ट इज द सेम इन बोथ द एनिमल्स। ठीक है, सिर्फ ये टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं इसलिए इनका नाम बुक लंग्स हो गया इनके ऑर्गन का, ये एक्वेटिक है तो इनका नाम बुक गिल्स हो गया। ठीक है, अब आप याद रखेंगे, शायद ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, क्योंकि टिपिकल एग्जांपल्स हैं इसलिए एग्जाम में जरूर आते हैं। अब हम आर्थ्रोपोडा के सर्कुलेटरी सिस्टम पे आ गए। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम इज देयर, मतलब कोई क्लोज चैनल्स नहीं है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरी कुछ नहीं होती है इसमें। बॉडी में कैविटीज होती हैं आर्थ्रोपोड्स में, उन कैविटीज को बोलते हैं साइनस, साइनसेस। चैप्टर 7 में आप डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ हाइलाइट्स बता देती हूँ। इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप का है, ब्लड वेसल्स में ब्लड रन नहीं करता। वैसे अगर टेक्निकली देखा जाए तो इसके ब्लड को ब्लड कहते भी नहीं,
क्योंकि उसमें कोई आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स तो है नहीं, ना ही वो लाल रंग का है। कॉकरोच मारा, कभी लाल खून निकला उसका? नहीं निकला ना, खून होता ही नहीं है उसमें। तो उसमें एक व्हाइट कलर का फ्लूइड होता है, और उस फ्लूइड को बोलते हैं हीमोलिम्फ। ठीक है, हीमोलिम्फ कहते हैं उसको। तो लिम्फेटिक नेचर का फ्लूइड है वो, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है, इसीलिए उसको हम ब्लड नहीं कह सकते, वो रेड कलर का नहीं होता है। अब ये देखिए, ट्यूबुलर हार्ट है, ट्यूब शेप हार्ट है। लास्ट सेगमेंट से लेकर फर्स्ट सेगमेंट तक ये सेंटर में बिल्कुल ट्यूब है। आपको पता है इतनी लंबी ट्यूब जो है ये हार्ट है इसका। अगर आप गिनती करो तो इसमें कितने चैम्बर बनेंगे? 13 चैम्बर है, 13 चैम्बर्स है इसके हार्ट में, है ना। आपके हार्ट में तो 4 ही चैम्बर्स होते हैं, और इसके हार्ट में 13 चैम्बर्स हैं। लेकिन इसका हार्ट बहुत प्रिमिटिव टाइप का है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक ट्यूब है। इसका काम ब्लड को पंप करना नहीं है, इट्स नॉट अ मस्कुलर ऑर्गन, पंपिंग ऑर्गन नहीं है ये। सिर्फ ये रिले करता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड को पोस्टीरियर साइड से आगे हेड की तरफ, एंटीरियर साइड की तरफ। ब्लड यहाँ से चलता है, इसमें घुसता है और ऐसे आगे की तरफ जाता है। ठीक है, हर एक चैम्बर में 2 छेद होते हैं, ऑस्टिया, पढ़ेंगे हम 7 चैप्टर में डिटेल में। वहां से हीमोलिम्फ एंटर करता है और पीछे की तरफ, सॉरी, एंटीरियर साइड की तरफ फ्लो करता है। अब भाई ये ब्लड को फ्लो कराने का काम कौन करता है फिर? क्योंकि हार्ट तो मस्कुलर ऑर्गन है नहीं, हार्ट तो पंपिंग नहीं कर रहा है ब्लड की, तो कौन पंप कर रहा है? ये देखो, हर एक चैम्बर के आसपास एक पेयर मसल्स का प्रोवाइडेड है, एरी मसल्स। ये एलरी मसल्स कंट्रैक्ट करते हैं और रिलैक्स करते हैं, कंट्रैक्ट रिलैक्स। इनके रिदमिक कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन से ये हार्ट के चैम्बर्स पिचकते हैं और फैलते हैं, और उससे एक प्रेशर जनरेट होता है जिससे ब्लड आगे की तरफ ट्रेवल करता है। ठीक है, समझ गए आप? तो दिस इज द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच। नेक्स्ट इज सेंसरी ऑर्गन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई ये, सेंसरी ऑर्गन्स इनके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपने देखा होगा कॉकरोच में सबसे डरावनी चीज क्या होती है? उसके आगे इतने लंबे लंबे जो उसके 2 धागे निकले होते हैं, एंटीना निकले होते हैं, है ना। वो सबसे डरावने होते हैं कॉकरोच में। तो कॉकरोच हैज गॉट अ पेयर ऑफ एंटीनी। एंटीनी इज सिंगुलर, एंटीना इज प्लूरल, सॉरी, एंटीनी इज प्लूरल, एंटीना इज सिंगुलर। ठीक है, तो एक पेयर है एंटीना का, हम बोलेंगे एंटीनी। काम क्या है इन एंटीनी का? देखो, चलने से पहले आपने देखा होगा, कभी ऑब्जर्व किया कॉकरोच के, जब वो चलता है, आगे मूवमेंट करता है, सबसे पहले वो अपने एंटीना घुमा के कुछ चेक करता है ना, कुछ सेंसेशन लेता है। तो वो क्या चेक करता है? वो चेक करता है, वो एक टच रिसेप्टर्स है, एंटेना टच रिसेप्टर है। वो आगे के ग्राउंड, आगे के एनवायरमेंट के बारे में उसको सूचना देते हैं। ठीक है, यूजुअली दीज एंटेना आर कवर्ड विद ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, मतलब इनमें स्मेल करने के लिए भी रिसेप्टर्स होते हैं। वो स्मेल कर सकता है आगे क्या, आगे का एनवायरमेंट कैसा है, खतरा तो नहीं है आगे, आगे फूड अवेलेबल है कि नहीं है। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है ओडर को, ओडर मॉलिक्यूल्स को परसीव करते हैं। ओडर मॉलिक्यूल्स मींस ऐसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल मॉलिक्यूल्स जो स्मेल जनरेट करते हैं हवा में। ठीक है, तो सेंस ऑफ स्मेल इन एंटीना से मिलती है उनको, कॉकरोच को। और साथ ही टेक्टाइल रिसेप्टर भी है, टच करके आगे का पता लगाते हैं। कुछ इंसेक्ट्स जो है उनमें एंटीना ह्यूमिडिटी का भी सेंसर होते हैं, कितना मॉइस्चर कंटेंट है, पानी का कितनी मात्रा आगे अवेलेबल है, उसका, उसको भी सेंस करते हैं। ठीक है, तो एंटीनी इनका बहुत इंपॉर्टेंट सेंस ऑर्गन है। ओके, नेक्स्ट सेंसरी ऑर्गन इसकी है आईज। तो कुछ इंसेक्ट्स में सिंपल आईज होती हैं और कुछ में कंपाउंड आईज होती हैं। सिंपल आईज तो वैसी ही है जैसे हमारे में है ना। ये इसका लेंस है, ये आगे कॉर्निया है, आइरिस है, लेंस है, पीछे रेटिना है जहाँ इमेज बनती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू वो इमेज ब्रेन को पास हो जाती है। ठीक है, तो ये तो सिंपल आई है, एक आंख से एक ही इमेज बनती है ना। आपको पता है एक सिंगल इमेज ही बना सकते हैं हम, एक टाइम पे एक ही इमेज हमारी आंख में बनती है। लेकिन कुछ इंसेक्ट्स ऐसे हैं जैसे कॉकरोच, ठीक है, मतलब कुछ आर्थ्रोपोड्स ऐसे हैं जैसे ऑलमोस्ट सारे इंसेक्ट्स, टिपिकल एग्जांपल हम कॉकरोच का ले रहे हैं, उनकी आईज में मल्टीपल इमेजेस बनती है। कैसे? ये इनकी आंख का एक क्रॉस सेक्शन है, पूरी आंख तो ऐसे गोल होती है, उसका क्रॉस सेक्शन काट के दिखाया हुआ है, तो उसका क्रॉस सेक्शन है। इसमें आप देख सकते हो आंख के ऊपर के सरफेस पे छोटे छोटे कितने हेक्सागोनल आपको यूनिट्स दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो ये ग्राफ के जैसी आंख होती है, ऊपर से देखो तो ग्राफ पेपर जैसी दिखती है, इसमें ऐसे बहुत सारे हेक्सागोनल यूनिट्स होते हैं। आपको हैरानी होगी जान के, हर एक हेक्सागन, हर एक यूनिट जो है वो असल में कॉकरोच की एक आंख है। समझ रहे हैं? कितनी आंखें हो गई इसके अंदर, दे मेड अप ऑफ हंड्रेड्स एंड समटाइम्स थाउजेंड्स ऑफ सच आईज। ईच यूनिट इज वन आई। क्या बोलते हैं इस आई को? इसे बोलते हैं ओमेटिडियम। ठीक है, यहाँ लिखा नहीं है, आई मिस राइटिंग हियर।
वन सिंगल आई इज कॉल्ड, सिंगल यूनिट ऑफ द आई इज ओमिटिडियम। ये एक ओमिटिडियम दिखाया हुआ है आपको, देखो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल इस आई के जैसा ही है। देखो सबसे ऊपर कॉर्निया है ना, फिर पीछे कोन आ गए जो कलर्स को और ब्राइट लाइट को परसीव करते हैं। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स है पीछे, है ना। सबसे पीछे इसके एक्सॉन्स है। ये एक्सॉन क्या है? नर्व के एक्सॉन है। जो यहाँ इमेज बनी, रेटिना पे इमेज बनती है फोटो रिसेप्टर सेल्स पे, उस इमेज को ये नर्व फाइबर्स लेके ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, तो हर एक ओमिटिडियम, हर एक यूनिट जो है आंख का, उसमें एक इमेज बनेगी, है ना। सपोज वो आप एक बहुत बड़ी ऑब्जेक्ट को व्यू कर रहे हैं इंसेक्ट्स, तो वो ऑब्जेक्ट का बाय पार्ट्स इमेज बनती है। ठीक है, उसके एक भाग पे एक ओमिटिडियम फोकस करेगा, उस ऑब्जेक्ट के दूसरे पार्ट पे दूसरा ओमिटिडियम फोकस करेगा, थर्ड पार्ट पे तीसरा ओमिटिडियम फोकस करेगा। तो जो इमेज बनती है ऐसे कंपाउंड आई से, वो बाय पार्ट्स होती है, कंप्लीट इमेज नहीं बनती। वो एक इमेज को बहुत सारे सेक्शंस में बनाते हैं, और हर एक कॉम्पिटिटिव में उस ऑब्जेक्ट का एक सेक्शन का इमेज बनता है, और वो सारे सेक्शंस की इमेजेस ब्रेन को जाती है, और ब्रेन में जाके उसकी प्रोसेसिंग होती है फिर, और प्रोसेसिंग के बाद द ब्रेन टेल्स दैट व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये इस तरह से जो कंपाउंड आईज है वो मल्टीपल इमेजिंग करती हैं, और इसके बारे में और डिटेल आप चैप्टर 7 में जाके पढ़ोगे। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड टाइप ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट सेंसरी ऑर्गन, दैट इज स्टैटोसिस्ट। अब ये स्टैटोसिस्ट क्या है? स्टैटोसिस्ट एक बैलेंसिंग ऑर्गन है। इट्स एन ऑर्गन टू बैलेंस। ठीक है, अब देखते हो इंसेक्ट उड़ते हैं और फिर अचानक आके बैठ जाते हैं, लैंड कर जाते हैं। बैठे होते हैं, आप उनको मारने लगते हो, एकदम झटके से उड़ जाते हैं। ठीक है, अब भाई ऐसा क्यों? एक तो उनकी आंखों की स्पेशलिटी है कि वो मूवमेंट बहुत जल्दी परसीव कर लेती है। ठीक है, वो स्टैटिक इमेज से मूविंग इमेज जल्दी परसीव करती है, इसलिए उनको मूवमेंट जल्दी पता चलती है। दूसरा, उनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन है जो उनको जल्दी से लैंड करवा देता है और फटाफट उड़ने में मदद करता है। ये बैलेंसिंग ऑर्गन देखो, ये श्रिम्प पैलिमॉन की बात कर रही हूँ मैं, प्रॉन की, उसमें यहाँ इसके बेस पे प्रेजेंट है, पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट है स्टैटोसिस्ट। ठीक है, स्टैटोसिस्ट प्रोवाइड्स एन इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द मूवमेंट ऑफ एन एनिमल टू द ब्रेन। अगर ये एनिमल मूव करेगा, ठीक है, तो उसकी जो मूवमेंट है, उसकी बॉडी का पोस्चर, वो उसके ब्रेन तक इसकी मैसेज स्टैटोसिस्ट पहुंचा देगी, ताकि जैसे ही इम्बैलेंस होने लगे, ब्रेन एकदम से इसके मसल्स को मैसेज देकर इसको बैलेंस करवा दे, इसके पोजीशन वापस बैलेंस हो जाए। तो ये बैलेंस मेंटेन करने का काम कौन करता है? स्टैटोसिस्ट। नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू द ऑर्गन कॉल्ड माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, ये एक ग्रास हॉपर है, इसमें मैंने पहले भी आपको इसके बारे में बताया। ये मिडगट है इसकी, ये हाइंड गट है। मिडगट और हाइंड गट के जंक्शन पे ये बहुत सारा ट्यूबुलर ब्लाइंड सैक्स प्रेजेंट होते हैं। ब्लाइंड सैक क्यों? यहाँ से बंद है और यहाँ से खुले हैं। ठीक है, तो ये ब्लाइंड सैक की जो वॉल है परमेबल होती है, ये क्या करती है? आसपास से नाइट्रोजनस वेस्ट को, ये बॉडी कैविटी दिखाई है आसपास इसकी, है ना, तो ये बॉडी कैविटी में से ये जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, और फाइनली उसको कहाँ डाल देते हैं? इन द हाइंड गट। ठीक है, उसको इकट्ठा किया नाइट्रोजनस वेस्ट को और हाइंड गट में डाल दिया, और यहाँ से वो फाइनली इनस के थ्रू रिमूव हो जाएंगे। So Malpighian tubule system is a type of excretory and osmoregulatory system found in some insects. These tubes are present between midgut and hindgut. They absorb solutes. सोल्यूट्स की मात्रा ज्यादा है अगर बॉडी कैविटी में, तो उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी ज्यादा है, उसको भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये ऑस्मो रेगुलेशन पार्ट हो गया। ठीक है, नाइट्रोजनस वेस्ट को भी एब्जॉर्ब कर लेंगे। ठीक है, हीमोलिम्फ जो इनके आसपास हीमोलिम्फ इस कैविटी में घूम रहा है, उसमें जितना वेस्ट है, जितने एक्सेसिव सब्सटेंसेस है, उन सबको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स, एंड दे थ्रो देम आउट ऑफ द बॉडी। दिस इज एक्सक्रीशन। ठीक है, चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट कौन सा है? देखो, मैंने जो आपको माल्पीजियन ट्यूब बताई, ये सिर्फ माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स इंसेक्ट्स में होती है। ठीक है, बाकी के सब आर्थ्रोपोड्स में जरूरी नहीं है माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स ही हो। जैसे प्रॉन की अगर हम बात करें, प्रॉन तो एक्वेटिक एनिमल्स है, उनके अंदर चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या बनता है? अमोनिया। जो भी पानी में रहता है जनरली वो अमोनिया प्रोड्यूस करता है, तो अमोनिया बनता है इनकी बॉडी में, और उसको रिमूव कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन करते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स। प्रॉन में माल्पीजियन ट्यूब्यूल नहीं होती है, ग्रीन ग्लैंड होते हैं। कॉकरोच में माल्पीजियन ट्यूब्यूल्स होती हैं, क्योंकि कॉकरोच को पानी की अवेलेबिलिटी ज्यादा नहीं है, बहुत ही कम है,
बहुत कम पानी अवेलेबल होता है कॉकरोच को, इसीलिए ये यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। इनका चीफ नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिक एसिड। ठीक है, तो जितने भी इंसेक्ट्स है मोस्टली वो यूरिक एसिड को ही एक्सक्रीट करते हैं टू कंजर्व वाटर इन देयर बॉडी। नेक्स्ट पार्ट इज रिप्रोडक्शन। कॉकरोच का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, आपको मैंने बताया था कि मेल और फीमेल ऑर्गेनिज्म जो है आर्थ्रोपोडा में अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो दे आर डाइशियस। डाइशियस मींस मेल कॉकरोच इज डिफरेंट, दिस इज मेल कॉकरोच एंड दिस इज फीमेल कॉकरोच। ठीक है, डाइशियस का एक और टर्म क्या है? यूनिसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, एक ऑर्गेनिज्म में एक ही प्रकार के सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्टिलाइजेशन इनमें इंटरनल होती है। ठीक है, दे आर मोस्टली ओविपेरस, एग लेइंग एनिमल्स हैं ये। ठीक है, दे प्रोड्यूस, दे ले एग्स, एग्स हैच करते हैं, उसमें से यंग वंस निकलते हैं। डेवलपमेंट में भी डायरेक्ट, डायरेक्ट डेवलपमेंट मतलब देयर इज नो लार्वल फॉर्म, और कईयों में इनडायरेक्ट भी होती है, यानी कि कोई लार्वल फॉर्म प्रेजेंट होती है। ठीक है, जैसे कॉकरोच में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, उसमें एक लार्वा बनता है जिसका नाम होता है निम्फ, NYMPH, निम्फ। ठीक है, तो ये इसका डिटेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स का आप चैप्टर 7 में पढ़ेंगे। ये फीमेल के केस में ओवरीज में ओवा बनते हैं, फंक्शनल ओवा या मेच्योर ओवा यहाँ आ जाते हैं, जेनिटल चैम्बर में आ जाते हैं। मेल कॉकरोच में यहाँ टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं एंड दे आर गिवन आउट, एंड दीज स्पर्म्स आर इंसर्टेड इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। These sperms also reach the genital chamber, पहले यहाँ स्टोर होते हैं स्पर्मेथिका में, फिर जेनिटल चैम्बर में पहुंच जाते हैं स्पर्म्स, और यही फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद फर्टिलाइज एग्स यहीं पर जो है वो क्या बन जाते हैं? दे डेवलप अ कवर आउटसाइड देम, और सिस्ट फॉर्म कर लेते हैं अपने आसपास, एक एग शेल फॉर्म कर लेते हैं, एंड फाइनली they are given out in the outer environment and hatch there when the young one or the larval stage is fully developed. ठीक है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट है कॉकरोच में, ये देख रहे हो आप, एग है कॉकरोच का, ये छोटा सा एक लार्वा बना, ये एक और लार्वा बना, ये लार्वा बना। अब ये क्या है, इन्हें क्या बोलते हैं? यंग वंस को, जो लार्वल स्टेजेस है इन्हें बोलते हैं निम्फ। दीज आर निम्फ्स। क्या डिफरेंस होता है इसमें और एडल्ट में, क्यों डिफरेंट है ये? पहले तो इसका बॉडी का पिगमेंट आपको पता है ब्राउन कलर का होता है कॉकरोच में, ये पेल येलो कलर के होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, इनमें अभी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं फुल्ली मेच्योर नहीं हुए हैं, ये दूसरा इंपॉर्टेंट रीजन है। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट कारणों की वजह से दीज आर द लार्वल फॉर्म्स एंड दे आर नॉट रिजेंबलिंग द एडल्ट। ठीक है, ये निम्फ धीरे धीरे डेवलप होते होते एडल्ट लाइक स्ट्रक्चर बन जाते हैं, एंड नाउ दे आर फुल्ली मेच्योर एडल्ट्स। ठीक है, ये एक लार्वल स्टेज की दूसरे लार्वल स्टेज से होते हुए एडल्ट तक बनने के प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। The gradual change of larval stage into adult is metamorphosis. चलिए, देन इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स के बारे में बात कर ले हम। एपिस इंडिका, एपिस इसका जीनस है, इंडिका स्पीशीज है, ये हनी बी है। ठीक है, हनी प्रोड्यूस करती है, हनी हमें मिलता है इनसे, तो ये इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है, इससे हमें फायदा है। देन सिल्क वर्म, ये सिल्क वर्म देख रहे हैं आप, ठीक है, मलबरी लीफ के ऊपर फीड करता है, ये सिल्क के थ्रेड्स जनरेट करता है। ठीक है, दैट इज सिल्क वर्म, और इसका साइंटिफिक नेम क्या है? बॉम्बेक्स। बॉम्बेक्स इज द जीनस, मोरी, मोरी इज द स्पीशीज, बॉम्बेक्स मोरी। ये सिल्क मिलता है इससे हमें। लेसिफर, ठीक है, लेसिफर इज द लाख इंसेक्ट, ये देख रहे हैं आप, ये इंसेक्ट, ये लाख मिलती है इससे हमें, लाख। लाख मालूम है आपको? ज्यादातर ये सील करने के काम आती है। गवर्नमेंट ऑफिस में एक ब्राउनिश मरून कलर का एक सॉलिड एक स्टोन लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको जब हम गर्म करते हैं तो वो पिघल जाता है, और पिघलने के बाद आप उसको जहां चिपकाओगे वहां वो एक सील, एक मोहर लगा देगा, दैट इज लाख। ठीक है, लाख इंसेक्ट, इसे लाख बोलते हैं। ठीक है, चलिए, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स में और आगे वेक्टर्स आ गए। ठीक है, वेक्टर मतलब एक ऐसे कैरियर जो बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम कैसे मलेरिया को कैसे छोड़ जाएं, जो बहुत फैलता है इंडिया में। ठीक है, स्पेशली दिल्ली में ये मलेरिया, डेंगू, ये सब प्रॉब्लम्स हम लोग झेलते हैं। तो मलेरिया का जो बीमारी का जो कैरियर है, जो इसका वेक्टर है, वो कौन है? एनाफील्स मॉस्किटो। ठीक है, कॉजल ऑर्गेनिज्म तो प्लाज्मोडियम है, लेकिन कैरियर है एनाफील्स मॉस्किटो, फीमेल एनाफील्स मॉस्किटो, ये है एनाफील्स मॉस्किटो। नेक्स्ट इज क्यूलेक्स मॉस्किटो, ये दिखा रखा है क्यूलेक्स,
ये एलिफेंटियासिस बीमारी कॉज करता है। मैंने आपको शायद इसके बारे में नो आई हैव नॉट टॉट यू। एलिफेंटियासिस ये आपके लिम्स की स्किन से ये इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। और बेसिकली ये एलिफेंटियासिस जो है ये लिम्स को में स्वेलिंग कॉज कर देता है, ठीक है। लिम्फ वहां पर इकट्ठा हो जाता है, स्वेलिंग हो जाती है एंड द फीट और द लिम्स जो लेग्स होती है दे अपीयर लाइक द लेग्स ऑफ एलिफेंट, दैट इज एलिफेंटियासिस, ओके। तो लिम्फ नोड्स जो होती है हमारी उनके अंदर ये इन्फेक्शन करता है। नेक्स्ट इज एडिस। ये एडिस मॉस्किटो है, ठीक है। एडिस मॉस्किटो डेंगू फीवर कॉज करता है। इन सब के बारे में आप बहुत जानते हैं, ये सब बहुत फैलते हैं दिल्ली में, सो यू नो अबाउट दिस। चलिए नेक्स्ट हम अब और इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स पे आते हैं। ग्रेगेरियस पेस्ट। ग्रेगेरियस मतलब जो ग्रुप में काम करते हैं, ठीक है, जो ग्रुप में रहते हैं। पेस्ट मतलब जो डैमेज करते हैं किसी होस्ट को, ठीक है। तो ये जो ग्रेगेरियस पेस्ट है ये हमारी क्रॉप्स को डैमेज करते हैं, ठीक है। टिड्डी दल कहते हैं इसको, टिड्डी दल, ठीक है। टिड्डियां होती हैं ये, और ये पूरी झुंड का झुंड टिड्डियों का किसी खेत पर अटैक कर देता है और वहां की फसलों को पूरा खत्म कर देता है। सो दे आर वेरी डेंजरस पेस्ट। लोकस्टा इनका साइंटिफिक नेम है, कॉमनली इनको लोकस्ट कहते हैं, ठीक है। लिविंग फॉसिल। लिविंग फॉसिल क्या होती है भाई? लिविंग फॉसिल का मतलब है एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो कि फॉसिल की तरह है लेकिन आज की डेट में जिंदा है, ठीक है। आज लिविंग है वो ऑर्गेनिज्म, मतलब द ऑर्गेनिज्म विच शोज वेरी प्रिमिटिव फीचर्स। Since the time of evolution, there has not been any change in the features of this organism. Such organisms are called living fossils, ठीक है। तो लिमुलस है ये, किंग क्रैब, इसके बारे में पहले भी हमने बात की कि इसके अंदर बुक गिल्स होते हैं, एक्वेटिक नेचर का होता है ये, ठीक है। सो दिस इज लिमुलस, इट इज अ लिविंग फॉसिल। अब एक चीज मैं और शेयर करना चाहती हूँ आपसे कि इंसेक्ट्स जो कॉकरोच होते हैं, ठीक है, और एरेक्निड स्पाइडर्स होते हैं, ठीक है। इंसेक्ट्स का एग्जांपल है कॉकरोच, एरेक्निड, यू नो दिस फाइलम आर्थ्रोपोडा, इट हैज गॉट मेनी क्लासेस, ठीक है। एक क्लास है इसकी इंसेक्टा। इंसेक्टा क्लास का मेंबर है, जैसे कॉकरोच, ग्रास हॉपर, प्रेइंग मैंटिस, ये सब इसके एग्जांपल है। एक और क्लास है फाइलम आर्थ्रोपोडा की, एरेक्निडा। एरेक्निडा में स्पाइडर्स आते हैं, स्कॉर्पियंस आते हैं, ठीक है। एरेक्निड अगर हम देखें, एरेक्निड जो वर्ड है इंग्लिश में स्पाइडर को दिया गया है, इसका मतलब होता है स्पाइडर। तो आप जानते हैं क्या, अभी तक तो हम ये सोचते थे कि स्पाइडर और स्कॉर्पियन भी एक तरह से इंसेक्ट ही होते हैं। नो, दीज आर नॉट इंसेक्ट्स। स्पाइडर्स एंड स्कॉर्पियंस आर डिफरेंट फ्रॉम इंसेक्ट्स। क्या डिफरेंट है ये, अब मैं उनके बारे में बताने जा रही हूँ। इंसेक्ट्स में 6 लेग्स होती है, 3 पेयर ऑफ लेग्स। मैंने आपको पहले ही बताया था, 3 पेयर ऑफ लेग्स किसी भी एनिमल में देखो तो समझ जाओ कि वो इंसेक्ट है, ठीक है। और इसमें 2 पेयर विंग्स के होते हैं। लेकिन जो एरेक्निड्स होते हैं उनमें 8 लेग्स प्रेजेंट होती हैं, यानी कि उनके अंदर 3 पेयर नहीं है, 4 पेयर लेग्स हैं। दे हैव 4 पेयर ऑफ लेग्स एंड दे डू नॉट हैव विंग्स। यू नो, स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर दे डू नॉट हैव विंग्स। तो ये मेन डिफरेंस है आप जिससे हम जान सकते हैं कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर जो है वो इंसेक्ट नहीं है, दे कम अंडर अ डिफरेंट क्लास, एरेक्निडा, ठीक है। देन insects they consist of 3 pair of appendages whereas arachnids consist of 4 pair। बता ही दिया मैंने, insects में 3 pair legs है, arachnids में 4 pair। insects they have wings, arachnids do not have wings। बिल्कुल सही है, ये वही इसी का repetition आ गया। in insects the body is divided into head, thorax and abdomen। जबकि जो एरिकनिड्स होते हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, इनकी बॉडी में हेड और थोरेक्स आपस में फ्यूज होता है। क्या बना देता है? सेफेलोथोरेक्स। तो एरिकनिड्स की बॉडी को हम 2 ही भागों में बांट सकते हैं, सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, सेफेलोथोरेक्स एंड एब्डोमेन। तो आई होप नाउ यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्पाइडर व्हिच इज एन एरिकनिड एंड अ कॉकरोच व्हिच इज एन इंसेक्ट। अब किसी को भी देखकर आप पहचान सकते हो, स्पाइडर स्कॉर्पियन को ध्यान से देखना, उसमें आपको 3 ही पेयर मिलेंगे, सॉरी 4 ही पेयर मिलेंगे लेग्स के, और सारे इंसेक्ट्स में 3 ही पेयर मिलेंगे। स्पाइडर्स आर कॉमनली अवेलेबल, यू कैन इजीली ऑब्जर्व, 4 पेयर लेग्स के उनमें आपको आसानी से दिखेंगे। सो दैट शोज दे आर एरिकनिड्स, दे आर नॉट अंडर इंसेक्ट्स। तो ये सेशन था आज का। फाइलम आर्थ्रोपोडा ने बहुत टाइम लिया, भाई बिल्कुल लेगा, जायज सी बात है, सबसे बड़ा फाइलम है ये, ठीक है। तो इसीलिए सबसे बड़ा फाइलम होने की वजह से इसमें बायोडाइवर्सिटी भी बहुत ज्यादा है। बायोडाइवर्सिटी होने की वजह से सेलिएंट फीचर्स भी बहुत सारे हो गए।
वेरिएशंस हैं इनके ट्रेड्स में, तो उनको एक्सप्लेन करना जरूरी था आपको. So that ends the today's session, and I will not start with mollusca now. I had planned although, but the description took a long time. So I'll teach mollusca tomorrow. ठीक है. और आज अब mollusca ना पढ़ा के मैं सीधा असाइनमेंट सेक्शन पे चलती हूँ. आपको असाइनमेंट्स के बारे में बता दूं मैं. ये हम कल पढ़ेंगे सारा. ठीक है. Now we come to the assignment part. Assignment part में question 1. What are the reasons that you can think of for the arthropods to constitute the largest group of animal kingdom? आपको क्या लगता है आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट ग्रुप कैसे है एनिमल किंगडम का? बताओ भाई. रीजंस जान सकते हैं आप? आर्थ्रोपोडा क्यों लार्जेस्ट ग्रुप है एनिमल किंगडम का? पहली बात तो इसमें बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है. ठीक है. लार्जेस्ट ग्रुप है ये. दूसरा, इसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी अडेप्टेबिलिटी, उनके अडेप्टिव जो एक प्रॉपर्टी है बहुत ज्यादा है. वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस को. दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजंस why arthropods they are so biodiverse. ठीक है. they did not perish with the changing environmental conditions, but they just diversified. ठीक है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है. आप देखिए इसका एक बहुत साक्षात एग्जांपल है लिविंग फॉसिल लिमुलस, है ना. और कॉकरोच भी आपको पता है बहुत एंशिएंट है, वो भी लिविंग फॉसिल से कम नहीं है. वो इतना प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर भी सारे प्रिमिटिव फीचर पाए जाते हैं. वो अडेप्ट नहीं होता है, उसके सारे फीचर्स ऑलरेडी जितने भी एनवायरमेंटल चेंजेस आई उनको आराम से उसने विथस्टैंड कर लिया. ठीक है. तभी तो पेरिश नहीं होता है. ये उसका परपेचुएशन का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है. चलिए सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन इज लिस्ट एनी 4 आइडेंटिफाइंग फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोडा एंड गिव एग्जांपल्स. आइडेंटिफाइंग फीचर्स आर्थ्रोपोडा की मैंने आपको सारे बता दिए, एग्जांपल्स भी दे दिए. उनको आप लिस्ट कीजिए कोई 4 फीचर्स. कोई 4 फीचर्स का मतलब ये नहीं होता आप कोई भी फीचर लिखेंगे. सबसे पहले वो फीचर लिखेंगे जिसके बेस पे आर्थ्रोपोडा का नाम है. ठीक है. जॉइंटेड पेयर ऑफ अपेंडेजेस. पेयर जॉइंटेड अपेंडेजेस सबसे पहले लिखना है फीचर, क्योंकि वो इसका उसी की वजह से इसका नाम है. उसके बाद आप 3 फीचर्स और दे सकते हैं. ठीक है. बॉडी का डिवीजन का फीचर दे दो, सेगमेंटेशन का फीचर दे दो, एक्सोस्केलेटन का फीचर दे दो, है ना. ये फीचर्स आप दे सकते हैं. Next is mention the unique features of phylum Mollusca. Sorry, this question doesn't is not valid for today because I have not taught you Mollusca yet. ठीक है. तो ये कल हम ये क्वेश्चन आप कल अटेम्प्ट करना जब मैं पढ़ा दूंगी मोलस्का. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन 4. डिफरेंशिएट बिटवीन एनालिडा एंड आर्थ्रोपोडा. ये आप आराम से कर सकते हैं. एनालिडा का टाइप स्टडी एग्जांपल था अर्थवर्म. आर्थ्रोपोडा का है कॉकरोच. तो आप एक टेबल की फॉर्म में सेंटर में एक लाइन ड्रॉ करिए. एक तरफ लिखिए एनालिडा, एक तरफ आर्थ्रोपोडा, और उनके डिफरेंस के पॉइंट्स को आप कंपैरेटिव पॉइंट्स को लिस्ट कीजिए. एंड डू नॉट फॉरगेट टू गिव एग्जांपल्स एट द एंड. चाहे एग्जांपल पूछे हो या नहीं पूछे हो, आपको हमेशा कोई भी डिस्क्रिप्शन के बाद एग्जांपल जरूर देने हैं फाइलम के. ठीक है. यस. ओके. सो yes, Udit, mollusca is the second largest phylum, but unfortunately we could not study it today because this phylum arthropoda took a very long time. Okay, so I think we'll discuss it tomorrow and you will feel very interested in learning about the features of mollusca. So till then, study well, do all the assignments in your notebook, be very regular. I am just giving at the maximum 4 or 5 questions in the assignment, not more than that, because I know you are studying all the subjects in a single day. You are having 1 hour lecture of every subject daily. You are very busy and it is very difficult for you to complete the assignments of each subject. So I am keeping you light. Just revise the concepts, come up with the doubts tomorrow, and do these minimum 3-4 questions which I am giving you daily. ठीक है. ये पीपीटी बेटा आपको यहीं से लेनी पड़ेगी. लिंक आपको यहीं अवेलेबल है, अलग से कहीं मैं इसको शेयर नहीं कर सकती हूँ. All the pages of PPT are there in this video, so you can either get a screenshot of it or you can you can study from this video only. The links are given on Facebook and YouTube also. ठीक है. Till then beta, stay safe and take care of yourself. Study well.